Welcome back to the new video, which is on the topic of there are factors that are affecting drug interactions, right? Drug interactions or drug interactions. So let's move on to the topic. There are a lot of factors that may affect the drug-drug interactions, and in order to understand the drug interactions, we have to understand what are the factors. So first one, which the factor is, what is the age of, what are the age? Age may we have newborn, newborn babies. Okay, if we talk about the newborn babies, why? Because they have poor kidney and function. Okay, are you getting me? I'm saying the first factor which will affect the drug interaction or drug interaction, they are newborn babies. In newborn babies, why we are talking about the newborn babies, right? Because in the newborn babies, in age we have chosen newborn babies, and in newborn babies, because newborn babies, they have put poor kidney function, they have poor kidney, and liver functions, which can affect the absorption, distribution, and metabolism of the drug, which can affect the ADME, right? Are you getting me? And they can also affect the another drug, right? That's why तो pediatric dose जो होता है वो बिल्कुल different होता है दूसरों के साथ. अब न्यू बॉर्न के बाद हमारे पास सेकंड जो है वो क्या होता है? इसके बाद एज में ही हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है? दे आर एजेड पीपल. ठीक है, aged people have majority aged people have diabetes. Okay, when there is a condition like diabetes condition are there in the aged people, so due to this disease they can affect the absorption and distribution. Can affect the absorption and distribution. Okay, now move on to another factor. Second factor of which can affect the drug interaction of body weight. Body weight must be very ideal. If the person is very obese, if the person is obese or is very thin, it can affect the drug absorption. Okay, so why? Because volume of, अगर बहुत ज़्यादा obese है तो volume of distribution will be increased, and then it will, okay, volume of distribution will be affected. Okay, now I'm repeating. Age is very important. Why are we talking about the age? Age when newborn babies are there, because newborn babies have poor kidney and liver function, which can affect the ADME of the drug. Second is aged people. Aged people, because if they have diabetes, then they can affect drug absorption and distribution. Now we need an ideal body weight, because if a person is severely obese or he is thin, it can affect absorption, distribution, metabolism, and excretion. That can be lead to drug interactions. Okay, because अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा obese है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, तो इट में डिले द ड्रग इन द बॉडी, और ड्रग जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, जो कि टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाएगी आपको. तो आइडियल बॉडी वेट्स को होना बहुत ज़रूरी है. ये कॉम्पोजिशन और साइज को बता रहे हैं.
उसके बाद थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस सेक्स और जेंडर, राइट? सेक्स और जेंडर में क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, as we know that physiological factors are very very important. For example, female versus male. Okay, are you getting me? Gender जो है is very important. फीमेल वर्सेस मेल, जेंडर में हम देखेंगे फीमेल वर्सेस मेल ड्यू टू फिजियोलॉजी के और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, females and males have different doses. फीमेल की डोज जो है वो एज कम्पेयर टू मेल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फीमेल में हम कहते हैं, हम किस चीज़ का, अगर अगर जो लेडी है प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है अगर, क्योंकि अगर फीमेल है जो है तो फीमेल में फिजियोलॉजी की वजह से मैंने बताया, दोबारा से बताया, जेंडर में फीमेल है वर्सेस मेल, फीमेल की डोज जो है वो डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू मेल रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड फंक्शन में बता रही हूँ कि जेंडर में अगर, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दुबली औरत है तो उसको कम डोज की जरूरत होगी। And another factor is if a girl is pregnant or a woman is pregnant, so those must be adjusted because they are more prone to drug interactions because pregnant woman में जो blood होता है वो mothers की fetus में जाता है, और अगर ड्रग जो है वो मदर की फीटस में चली जाएगी तो इट कैन बी टॉक्सिक। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे ख्याल में कहते हैं बारबिचुरेट्स ड्रग्स की बात की जाती है। अगर बारबिचुरेट ड्रग दे दें तो ये जो है ब्लड को क्रॉस करती है, प्लासेंटल मेम्ब्रेन में चली जाती है, और जैसे प्लासेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है तो फीटस में चली जाती है, और फीटस के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। So that drug, especially barbiturate, can be avoided because they can be due to drug interactions. Okay. Now we have diurinal interactions. Diurinal interactions का क्या मतलब होता है कि main functions of the disease or organs or drug or elimination, or we can write in a different name, diurinal, right? Dry urinal situation. Okay. So what does diurinal factor, which can affect the drug-drug interaction, and that diurinal variations. इसको complete इस तरह से लिखते हैं, diurinal variations. Some drugs must be taken in very higher amount in different timings. Okay, दिन में कुछ ड्रग्स को ज्यादा नहीं ले जाता, कुछ ड्रग्स को रात में ज्यादा ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल रूमेटाइड आर्थराइटिस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इसमें होता है कि दिन में और रात में क्या फर्क है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए दिन में और रात में फर्क होता है। दिन में कॉर्टिसोल लेवल जो है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रात में। तो अगर हम रात में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो एज कम्पेयर टू अगर हम दिन में ले रहे हैं तो उसके मुताबिक डिफरेंट नंबर है। दिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की रिलीज ज्यादा होती है, तो अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कॉर्टिसोल ले रहे हैं, तो वो थोड़ा डिक्रीज होना चाहिए एज कम्पेयर टू तो रात में, बिकॉज रात में जो है वो कॉर्टिसोल की सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, और उस वक्त में रात में हमें ज्यादा लेना पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जहाँ तक मेरे जहन में आ रहा है, हाँ, एक और आता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का भी एक बड़ा अहम फैक्टर है जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो हैं उनको बड़ा इफेक्ट डालता है, और स्पेशली प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स जो है या प्रोटीन पे जो है बड़ा इफेक्ट डालता है। और अगर प्रोटीन पे इफेक्ट पड़ता है तो मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन पर बड़ा इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है,
तो ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होने की वजह से जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इंक्रीज, अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, और अगर रेट ऑफ टेम्परेचर कम है तो ये इस सिचुएशन में अगर डिक्रीज मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज लिवर के फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। Decreased temperature, liver function will be decreased, and this will lead to, right? उसके बाद another factor is genetics or genetics conditions are very important also. For example genetic variations में G genetic variation, right? Genetic condition, right? Conditions or genetic variations or variations. For example, it can also affect the drug-drug interaction. For example, if a person have some disease, glucose 6-phosphorylate dehydrogenase deficiency, glucose 6-phosphodehydrogenate 6-GDP. Okay, glucose G6PD deficiency है, ठीक है। अगर किसी बंदे में ये डेफिशिएंसी है तो इस तरह के पेशेंट्स में कुछ ड्रग्स जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वाइटामिन अगर इनको दे दें, ठीक है, या फिर इनको एंटी मलेरियल ड्रग्स दे दें, तो क्योंकि इस पे इनमें डेफिशिएंसी होती है इनकी, तो इनमें एंटी मलेरियल और वाइटामिन ले लें, वाइटामिन के स्पेशली, तो उनमें हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। एंटीकोआगुलेशन फैक्टर्स जो है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है और हीमोलाइसिस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब हम जो है थे कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम समझते हैं, जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी, कैन इफेक्ट द ड्रग इंटरेक्शंस। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेस, कुछ पेश, ठीक है, तो इसमें जो है वो डाइट के तौर पर ठीक है। सो जेनेटिक फैक्टर में बता दें कि अगर डेफिशिएंसी इसकी हो जाती है तो विटामिन के और एंटी मलेरियल ड्रग्स है वो नहीं देनी चाहिए इनको। इसके अलावा हमें कुछ पीपल्स की, कुछ पर्सन्स जो है उनके पास, कुछ पीपल की बात करते हैं, पीपल हैं इनमें कुछ पीपल्स पे कुछ होते हैं स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स, ठीक है, ये पीपल हैं कुछ ऐसे एसिटाइलेटर्स। अगर इन पीपल्स को एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं आइसोनियाजिड, ठीक है, अगर ये ड्रग हम इनको दे दें तो ये क्या करते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस कर देते हैं। स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटेड, स्लो को अगर हम आइसोनियाजिड दे दें, स्लो वालों को आइसोनियाजिड दे दें तो ये पेरिफेरल न्यूराइटिस इनमें कॉज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें डिजीजेस होती हैं पेशेंट्स को। फॉर एग्जांपल डिजीजेस में हम डिजीजेस स्टेट एंड देयर सीवियरिटी, फॉर एग्जांपल एक्यूट है, क्रॉनिक एंड अनस्टेबल डिजीजेस फॉर एग्जांपल, और सम मेल फंक्शंस ऑफ लिवर एंड हेपेटिक, जिसमें रीनल डिजीजेस, लिवर है और किडनीज हैं, because here you know that liver or kidney, they are usually involved in metabolism and excretion.
So if there is any problem or disease which liver and kidney have, so इनकी जो है वो drug interaction जो हो सकती है। अच्छा, यहाँ मैंने एक और भी लिखा, टोबैको यूज मीन्स स्मोकिंग। ठीक है, अगर स्मोकिंग कोई बंदा करता है, ठीक है, तो उनकी मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हमने देखा है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज होती है। एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, लिवर के एंजाइम्स जो ज्यादा इंक्रीज होते हैं, तो इनकी मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज हो जाती है। सो स्मोकिंग कैन ऑल्टर द मेटाबॉलिज्म दैट कैन इफेक्ट द ड्रग इंटरेक्शन। Okay, then which is one of the very important topic or very important factor is alcohol. Alcohol use, alcohol can be acute use होता है, chronic use हो जाती है। तो अल्कोहल जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ अल्कोहल जो है वो क्या करती है, अल्कोहल इनटेक कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म सिमिलर टू लाइक द इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अब ये इंक्रीज मेटाबॉलिज्म क्यों करती है, मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म लिवर एंजाइम को जो है वो ज्यादा बंद कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, वाई, इसमें मैं बता रही हूँ कि जो है वो अल्कोहल यूज जो होते हैं मेटाबॉलिक करेंगे। ठीक है, जो लोग अल्कोहल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो उनमें इंक्रीज हो जाती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म क्यों होती है, क्योंकि जो लिवर में एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज जो है एंजाइम, लिवर के जो एंजाइम का इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो दे विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग विल बी एक्सक्रीट मोर। ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी। सिमिलरली एज लाइक स्मोकिंग और अल्कोहल से इनकी मेटाबॉलिज्म, ये मैंने बताया था इसी तरह से। अब जो है इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि जो फिनाइटोआइन जो है उसको हम कहते हैं को नहीं देना चाहिए। ये ड्रग जो है वो ड्रग जो अल्कोहल यूज वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें इस ड्रग को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट कैन जो है इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ हेपेटिक एंजाइम, or and due to the increased hepatic enzyme and metabolism can also be increased, and metabolic enzyme like phenytoin will affect. Then another factor which is very important is like what are you eating. Food or diet is very important. It can affect or rate or effect of drug जो है इफेक्ट हो जाती है। जो ड्रग की रेट है और जो ड्रग की एक्सटेंट है वो दोनों जो है इफेक्टिव हो जाती है, के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, तो ड्रग्स को हमेशा खाने से 1 या 2 घंटा पहले या बाद में लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे फूड हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, और कुछ फूड ऐसे जो हमने कैल्शियम है, अगर हमने टेट्रासाइक्लिन ले लिए, ठीक है, तो ऐसे फूड्स में कैल्शियम ज्यादा हो जाती है और टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो आपके प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यू कैन से के ड्रग के भी जो है मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जो कि जो है ड्रग दूसरी ड्रग्स पे इफेक्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात मैंने कही, पॉलीफार्मेसी है। पॉलीफार्मेसी भी बड़ी इफेक्ट बिकॉज इट कैन पर्टिकुलर एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजाइम इंड्यूसर के साथ इफेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात होती है प्रेस्क्राइबर्स। प्रिस्क्राइबर्स का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे लोग हैं प्रिस्क्राइबर्स में, प्रिस्क्राइब यानी खुद से ले रहे हैं, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग अपने लिए हैं। ड्रग्स नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स आपने लिए हैं तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं, और जो है नॉन एब्यूज ड्रग्स जो है, अगर एब्यूज ड्रग्स आपने यूज कर ली हैं
तो उससे भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो है वो आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? Quality and quantity of a specific drug metabolizing enzymes with genetic polymorphism also comes under this. I already described with you genetic variations, maybe inherent and inter-individual variability in pharmacokinetics and pharmacological responses, because they can also affect the drug interaction and drug interaction, and can affect the absorption, distribution, and metabolism of drugs. So if there, I hope you understand the factors which can affect the drug interactions. So if you have any questions, just let me know. See you in the next video.